Hello everyone, welcome back to another video on Elite Academy, and today again we are going to discuss and develop a lot of new perspectives about UPSC's psyche and mindset. What are these? Let's understand. UPSC is increasing the depth really, or they are trying to play with the psyche of the aspirants? We will see with the help of a question which was asked by UPSC on 10th of March 2024 in an exam, and it was related, the question which we are going to discuss or the perspectives which we are going to discuss or develop is related to the military exercises. Military exercise हम पढ़ते हैं, कहाँ होता है, किसके बीच में होता है, इतना तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, बट यूपीएससी कुछ खेल रहा है. वो खेल क्या है समझते हैं. So here is our question. Let's understand. Have a look. The question is, which one among the following statements about win-backs is not correct? सबसे पहले तो बात आ गई कि ये नया टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया. पर्सपेक्टिव नंबर 1. पहले देते थे कि ये किस कंट्री के बीच में है, मैच द फॉलोइंग में आ जाता था. अभी विन बैक्स के ऊपर 4 स्टेटमेंट दे दिए एंड दे आर आस्किंग नेक्स्ट लेवल इज नॉट करेक्ट. इसका मतलब जो पहला हमारा साइकी है, पहला जो हमारा माइंडसेट है, वो ऐसा चलेगा कि यार अब इस विन बैक्स के बारे में 4 स्टेटमेंट में क्या हमें इंफॉर्मेशन सारी पता है या नहीं है. देयर विल बी पैनिक. पहला एक्शन. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ द स्टेटमेंट्स. It is a joint military exercise between India, Vietnam and Bangladesh. It was instituted in 2018. The first edition was conducted at Jabalpur, and in 2023 the Indian contingent comprised the Engineer Regiment of Bengal Engineers Group. जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं ना, और अगर आंसर नहीं पता है, अगर आपके थरो रिविजन नहीं हुआ है, अगर आप मिलिट्री एक्सरसाइजेस में लॉस्ट हो चुके हैं, देन you will give up, you will collapse here, and जो यूपीएससी आपके साइकी के साथ खेलना चाह रहा है, स्पेशली दोज स्टूडेंट जिन्होंने अच्छी रिवीजन और अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है, they will collapse here, they will give up here, definitely. आप सोचोगे ये सही है नहीं है, this information I don't know, this information I don't know, you will be gone. I will tell you, those who know the answer by now, you would have got to know the right answer as well, but who don't know, by the end of this video we will discuss the answer. How to reach the answer, that also I will tell it to you. But this is a new trend in a way that they are increasing the depth as well, and at the same time they are trying to play with your psyche. Psyche से कैसे खेल रहे हैं ये भी बताऊंगा. डेप्थ तो इंक्रीज हो रही है, ये सामने सामने दिख रहा है. बिकॉज दे आर आस्किंग व्हेन इट वाज स्टार्टेड, फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था, कौन कौन पार्टिसिपेट किया था, दैट इज द डेप्थ एंड ऑल फैक्ट्स. ऐसे क्वेश्चन में फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स कुछ नहीं है. ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट द आंसर. उससे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं. We run our PYQ based टेस्ट सीरीज, और जो हमारा ये PYQ बेस्ड डिस्कशन है, रिवाइज टू एज जो प्रोग्राम हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेते हैं, अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस को लेते हैं और उसके थ्रू 360 डिग्री एनालिसिस करके वी रीच द कंक्लूजन एंड द पर्सपेक्टिव व्हिच वी आर डेवलपिंग ऑन द सिमिलर लाइंस. वी हैव स्टार्टेड आवर PYQ बेस्ड टेस्ट सीरीज, जिसमें हम यूपीएससी के माइंडसेट जैसे वो खेल रहा है, जिस तरीके से डेप्थ है, द स्टैंडर्ड, द क्वालिटी एंड the nature of the question or the way they are asking, on the similar lines we have started our test series. It is known as the PYQ based test series, where we are offering 37 tests and current affairs को भी equally importance दी गई है. From the very first test we conduct revision classes. In fact हमारे जितने भी students हैं उनका revision classes अभी चल रहा है, revision day allocated है, because whatever you are learning, if you are not consolidating, there is no point, right? So don't run after 70, 60, 40, 50, 100 tests. Run after the information which you are getting from these tests, right? This is our PYQ based test series. We are running it for 24, we are running it 25. You are most welcome to join it if you want to take the lead. Talking about our current affairs program, it is also going on where we teach the current affairs. Teach from prelims point of view, mains point of view. Prelims के point of view से we teach it from in question answer format. We link it with the static, we link it with the definitely जो depth है वहाँ पे हम focus रहता ही रहता है. So this is about our current affairs program. Now talking about this win backs, जो क्वेश्चन का मुद्दा था, क्वेश्चन की जो एक्सरसाइज थी, उसको देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं डिटेल में. The Indian Armed Forces contingent reached Hanoi, Vietnam to take part in the 4th edition of joint military exercise Win-Backs in the year 2023. The exercise Win-Backs was instituted in the year 2018 and the first edition was indeed conducted at Jabalpur, Madhya Pradesh. It is an annual training event conducted alternatively in India and Vietnam. This is about win-backs. हमने सब देख लिया स्टेटमेंट, ये भी पता चल गया. क्वेश्चन का जो पर्सपेक्टिव है, क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है, आई विल टेल यू. बट अब बात आती है कि इस तरीके से कितनी एक्सरसाइजेस की डेप्थ हम प्रिपेयर करें. टॉकिंग अबाउट द वे फॉरवर्ड,
वे फॉरवर्ड में हमारे पास क्या है, अब सारी एक्सरसाइजेज में जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं, क्या हमें ऐसी ही डेप्थ को ध्यान में रखना है, सबके ईयर्स याद करने हैं? यूपीएससी डजंट वांट दैट। ये पर्सपेक्टिव जो हम डिस्कस करेंगे उसमें भी पता चलेगा यूपीएससी को ये नहीं चाहिए। एंड नीदर वी शुड गेट ट्रैप्ड, हमें उस ट्रैप में फंसना ही नहीं है। बट yes, certain things we should remember. For example, we should know the exercises in the year 2024, 23 में भी हुए हैं, लास्ट 1.5 ईयर्स की पता होने चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन एटलीस्ट जो ये 2024 में हुआ वो हम अपनी वीडियो में कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, धर्मा गार्डियन, सदा तंसीक, भारत शक्ति, लेमेटे, स्टेडफास्ट डिफेंडर, डेजर्ट साइक्लोन एंड खंजर, एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। दीज एक्सरसाइजेज वर इन न्यूज इन द ईयर 2024। और भी बहुत एक्सरसाइजेज हैं। 2023 जब खत्म होने वाला था तब भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हुई थी। अब हमें वो पता होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग आ सकता है, इस तरीके की डेप्थ इंक्रीज की जा सकती है। सबसे बड़ा अभी जो आपको टेंशन हो रहा है एज ए एस्पिरेंट, अब सबके ईयर्स याद रखने हैं, कौन सा क्या है कैसे नहीं। सबसे पहले उन एक्सरसाइज को आप डेवलप करेंगे या पढ़ेंगे जो न्यूज़ में है, जो करंट अफेयर्स में, जो यूनिक है, जो फर्स्ट टाइम हो रहा है और इट इज़ लाइक अ यूनिक इन इट्स ओन वे, उनको सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। और थर्ड तो थोड़ा बहुत तो अपना डेटाबेस में आप रिकॉर्ड करेंगे ही, डेटाबेस आप थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे सो दैट यू कैन एलिमिनेट द मैच बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। सो दिस इज अबाउट द एक्सरसाइजेस इन 2024। वी विल डिस्कस अबाउट देम इन डिटेल, थोड़ा 2-3 लाइन सबके बारे में देखेंगे जो इस साल न्यूज़ में थे। लेट्स स्टार्ट अबाउट देम, वी विल सी द पर्सपेक्टिव्स after this. Talking about the Dharma Guardian, the 5th edition of Joint Military Exercise Dharma Guardian was between Indian Army and Japan's Ground Self-Defense Force, and it was this year conducted in the month of Feb and March at Mahajan firing ranges in Rajasthan. The exercise is an annual exercise and conducted alternatively in India and Japan. और इसमें कौन participate करता है, कितने लोग हैं, that is not our business because उतना हम याद रख नहीं पाएंगे। Talking about Sada Tansik 2024, this was between Indian Army and the Royal Saudi Land Forces, and it was conducted for the first time. It was the first joint exercise between India and Saudi Arabia in Rajasthan, and the exercise was scheduled in the month of January and February. Talking about Bharat Shakti, it was a tri-services military exercise which was held at Pokhran, and again it was in the month of, and it demonstrated the prowess of the indigenously manufactured defense equipments of 3 services. Next is Lamite, and it translates, the meaning of Lamite is friendship in the Seychelles language. To participate in this exercise, Indian Army this year they traveled to Seychelles, and it was the 10th edition of Joint Military Exercise Lamite 2024, and it was scheduled in the month of March 18 to March 27. ये सब डेट्स वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है। Now talking about the Steadfast Defender, ये इंडिया से लेना देना कुछ नहीं है, but it was in news because NATO launched this exercise which is the largest exercise since Cold War, and they are rehearsing with the US troops, and it is assumed or it is believed that somewhere around 90,000 troops are going to participate in this Steadfast Defender 2024 drill, which will be conducted in the month of May. Now coming to Desert Cyclone 2024, it was also the inaugural edition of Joint Military Exercise Desert Cyclone between India and UAE, right? And it was to boost the interoperability through the exchange of knowledge and best practices in urban operations. Remember this, urban operations, and it was for the first time. Now talking about the last exercise which was there in the news was Khanjar. This was the 11th edition of India-Kyrgyzstan Joint Special Forces exercise, and it commenced at the Special Forces Training School in Baklo, Himachal Pradesh. So this is about the exercises which were in news अभी तक 2024 में। सबके बारे में हमने देख लिया। सदा तंसीक और डेजर्ट साइक्लोन फर्स्ट टाइम हो रहा है, लेमेटे का 11th एडिशन है, भारत शक्ति 3 मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बीच में हमारी तीनों जो डिफेंस फोर्सेस उन्हीं के बीच में है, धर्मा गार्डियन जापान के साथ है, खंजर किर्गिस्तान के साथ है। दिस इज़ हाउ वी हैव सीन एवरीथिंग। अब ये पता होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी आपकी भी लिस्ट होगी अपनी, डेफिनेटली आपकी भी अपनी एक लिस्ट होगी, उसको भी याद कीजिए। मैच द फॉलोइंग आ सकता है, डेप्थ के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, जो फर्स्ट एडिशन है वो आ सकते हैं। तो क्वेश्चन कैन बी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज वो द फर्स्ट एडिशन इन 2024, ठीक है, किस किस कंट्री के साथ हमारा फर्स्ट एडिशन हुआ, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन चाहे जैसा आए, इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है देन वी कैन मार।
Okay, let's understand about the question in detail, but before that let me tell you that we are posting many reels, shorts, कंटेंट की वीडियोस हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम के पेज पे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे वी आर पोस्टिंग, एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू विल गेट द लिंक. वी पोस्ट, दिस इज द रिसेंट रील विच वी हैव पोस्टेड विद रिस्पेक्ट टू द टैंटलम रेयर मेटल विच हैज बीन फाउंड इन द सैंड्स ऑफ सतलज रिवर. ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं. लाइक दिस वी पोस्ट मेनी सच वीडियोज ऑन अनसंग फ्रीडम फाइटर्स, ओरांस. आप 2 इंस्टाग्राम के लिंक हैं, आप दोनों को जाके फॉलो कर सकते हैं. यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन देम, टू फॉलो देम. नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, which one among the following statement about wind bags is not correct. तो हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि किसके बारे में है और पूछा क्या है, नॉट पूछा है. इट इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, वियतनाम एंड बांग्लादेश. सबसे पहले तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है ना, अगर आपने मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज किया है एंड अपने जो डेटाबेस बनाए हैं वहीं पे इसको एलिमिनेट करके आंसर आ सकता है कि बांग्लादेश इज नॉट पार्ट ऑफ इट. दिस इज नॉट करेक्ट. बाकी 3 स्टेटमेंट आपको पता ना भी हो तो चलेगा. दिस इज कॉल्ड प्लेइंग विद दिस साइकी. लेकिन जिसने रिवीजन ही अच्छे से नहीं किया है, जिसने एक बार रिवीजन किया, एक बार पढ़ा है, या मिलिट्री एक्सरसाइजेस को देख के बहुत बड़ा बोझ हो जाता है, फिर उसके लिए तो ये क्वेश्चन ट्रैप है. बिकॉज देयर फॉर सच एस्पिरेंट्स यूपीएससी इज ट्राइंग टू प्ले विद दिस साइकी. बट द स्टूडेंट्स हु आर वेल प्रिपेयर्ड इजीली, और वेल प्रिपेयर्ड में आपको ये वेल प्रिपेयर्ड ना भी हो तो चलेगा. इवन इफ यू डोंट नो दिस डेप्थ, देन ऑल्सो इट इज फाइन, राइट? सो द आंसर इज ए. I expect that whatever I wanted to communicate, I have communicated, and on the similar lines, we will align your preparation at least for the military exercises through this video. और कमेंट कर दिया करिए आप लोग, हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी पता चलेगा कि how well are you receiving this information or the videos which we are coming up with. Let us know. It will be pleasure reading your comments. See you all. Take care. Bye bye.